The power and money. Shakti or dhan. So today we will learn about how can we focus the power की जो शक्ति अपन एकत्रित कर रहे हैं, जो अपन पावर और गुड फीलिंग्स और लव की शक्ति को इकट्ठी कर रहे हैं, उसको अपन इकट्ठी करके मनी के एरिया में कैसे यूज करें, मनी के एरिया में शक्ति कैसे डेवलप करें. So we will start in English first. The power and the money. Poverty consists in feeling poor. How do you feel about money? Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. So poverty consists in feeling poor. मतलब आपकी ये feeling में है. If you feel poor, then you will not be able to attract money. It's all about the feeling. How do you feel about money? You know, as a kid, जब आपके पास 10 रुपए भी होते हैं, तो आपको बड़ा मजा आता है. मतलब, you know, you feel very rich. And so it's not about ki how much money you do you have. It's about how do you feel about money. Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. मतलब अगर आपको किसी ना कहीं लैक फील होता है, अपनी लाइफ में आपको फील होता है आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मनी को लेकर आपकी फीलिंग में कमी है, आपके भाव की दुनिया में कमी है. So when you correct your feeling for the money, then the money flows abundantly. If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money, because the majority of world's money and riches is in the hands of about 10% of the people. The only difference between the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feelings about money than they do bad feelings. It's as simple as that. मतलब उनको तराजू जो है ना good feelings की तरफ ज्यादा है in accordance with money. Why is it that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money, because most of the people who have money begin with nothing. The reason why so many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money. And those negative beliefs were fed into their subconscious mind when they were children. Beliefs like we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, wanting money is wrong and it's not spiritual, having plenty of money means hard work. So ये सारे belief के कारण you know लोगों को लगता है कि मनी इज नॉट गुड, मनी इज नॉट एथिकल. और ये बिलीव होता है, और ये मतलब आप सुनते हो ना कि मनी पेड़ पे तो नहीं उगते, एंड मनी से सब कुछ नहीं होता, एंड मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, values are more important, and if you don't have money but you have values, then you are more greater than, you know, the other people. So sometimes people just पता नहीं चलता उनको, पर वो वैल्यूज को है ना समझते हैं. दे आर you know, value oriented, that means you know they can't be rich, or being rich is not important, being value oriented is important. मतलब इसमें बिलीफ ऐसा है कि अगर आप वैल्यूज रख रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं हुआ. मतलब आई डोंट नो, इट्स जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, बट समटाइम्स पीपल थिंक लाइक दैट यू नो मनी, लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरा है. पर लालच बुरा है, दैट्स ट्रू, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद मनी. So greed is very different than just having good amount of money. You can even have good money, like you can have blessing as a money. जरूरी नहीं है greed से ही money आए. Money can easily come into your life when you feel you deserve it. You're deserving, and money is just a blessing. So you must not, मतलब लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं ग्रीड से, डिसऑनेस्टी से, और मतलब
अशांत होना, अनसैटिस्फैक्शन से मनी को लेकर. So they justify themselves as not having money because they don't want to be greedy, they don't want to be unsatisfied, they don't want to run after materialistic things. That's all stupidity. Money is money, money is energy, and money is, it's a blessing, and that's how I personally see it, and that's how I work on money, and that's how I see money is good, money is good, money is a blessing. I deserve money. Money loves me. I love money. Money is good. It's good to have money. Money is a blessing, like that. When you are a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. आपको पता भी नहीं चलता. और when you are a child, you accept just about everything your parents, teachers, and society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time, when you are told that wanting money is wrong, you're told that you have to earn a living, even if it means doing work that you don't love. Maybe you weren't even told that there are only certain jobs you can do to earn a living, and it's a limited list. अब ये एक और चीज है, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये बिलीफ होना कि जरूरी नहीं है जो आप काम करो उसमें मजे लो. यू नो वर्क से रिलेटेड लिमिटेशन है. मे बी यू वर इवन टोल्ड दैट देर आर ओनली सर्टन जॉब्स यू कैन डू टू अर्न अ लिविंग. फिर आप फैमिली प्रेस्टीज और फैमिली रिस्पेक्ट को आप मनी के कॉन्सेप्ट से अटैच कर देते हो कि ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी इमेज को, मेरी फैमिली की इमेज को शोभा नहीं देता. सो ये सब फालतू के बिलीव्स है. यू शुड फॉलो योर हार्ट, एंड whatever your heart desires will give you money. So if you are in high frequency, high level of love, you're loving what you're doing, you're living your life to the fullest, then you will attract money automatically. Where कपिल शर्मा सेज कि मैं तो बकवास करने के मेरे को पैसे मिलते हैं, जिस चीज के लिए मेरे को मेरी बीवी डांटती है घर पे, उसी चीज से मैं पूरे इंडिया में मशहूर हूँ, उसी चीज से मैं पैसे कमा रहा हूँ. He just loves being who he is, and he has just explored who he is. Same with all the film stars, they just love being who they are. They just fill themselves up with so much of love that everything is just attracted to them. Even the money, they get money because they feel they are deserving, they are loved, they deserve it, they cherish themselves. The whole world cherishes themselves, and to cherish them, world gives them money. So if you love cherishing yourself, then the world will love cherishing you. And when the world will love cherishing you, they can actually pay you to cherish you. So that's the concept. So whatever you love, it's the feeling of love. आप जितना उसको खींच के बढ़ा दोगे, उस घड़े को जितना बड़ा करोगे, उतना हनी बी की तरह मतलब मक्खियाँ, पैसा, फेम सब उसको अट्रैक्ट होके आएगा. So it depends on what you are giving love to. None of these things is true. People who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true, but they didn't believe it. The law of attraction made it true in their lives. Now you are learning that life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you're giving out more bad feelings than you're giving feelings about money. अब ये बोल रहा है आपके जो बिलीफ सिस्टम है, पहली बात तो वो आपको रोकता है मनी के लिए. आपके कोई भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होंगे मनी को लेके, दैट मनी इज इवल, रिच पीपल कैन बी डिसऑनेस्ट, वी कांट अफोर्ड इट, और अकॉर्डिंग टू वर्क कि कि ये काम करने से पैसा मिलेगा, ज़रूरी नहीं है काम करने जिस चीज़ में मज़ा आए उससे पैसा मिले. सो देयर आर लिमिटेशंस इन द बिलीव्स कि काम इज़ डिफरेंट, लव इज़ डिफरेंट, एंड यू कांट एन्जॉय वर्क एंड स्टिल हैव मनी. So Himanshu, hi, welcome. You are the only one reading book with me today. So I just shared कि है ना, जैसे दिलजीत दोषित है, he filled himself with love for what he does, and he gets money for singing, and he gets money for what he loves to do. सिमिलरली कपिल शर्मा ने खुद को इतना प्रेज और प्यार करके खुद को उसने प्रेज किया. उसकी खुद की सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसने खुद को बहुत सराहा.
उसको जो पसंद था, उसको जो जिस चीज़ से प्यार था, उसने उसको बहुत ज़्यादा प्यार देकर उसने अपनी घड़ी को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया, अपनी प्यार की शक्ति को खुद के लिए इतना बड़ा कर लिया that people wants to love him. You know, he loves his joke so much that उसने उस चीज़ को इतनी एनर्जी दी कि people wants to love his jokes. You know, so ये सिर्फ प्यार की शक्ति है। एंड एक और चीज़ ये थी कि है ना, पीपल से कि है ना, जो पॉवर्टी साइकिल में होता है ना, उनको लगता है कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए, अनसेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, पर ग्रीडी एंड अनसेटिस्फैक्शन का मनी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रीड की वाइब्रेशन अलग है, एंड ग्रीड की वाइब्रेशन अलग है, एंड money ki vibration is different. So the belief system I have for money is that money is a blessing. I deserve money. I deserve money because I cherish myself. So when you cherish yourself, एक बहुत strong किसी ने मैंने कहीं पढ़ा था about the root chakra. And the जो root chakra होता है ना, root chakra का मतलब होता है your self worth. जैसे जैसे आपकी खुद के लिए self worth बढ़ती है, the more you start cherishing yourself, the more you start cherishing your passions and what you love, उतना आपकी लाइफ में मनी इंक्रीज होता जाता है। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मतलब जितना आप सेल्फ लव करोगे, उतना आपकी लाइफ में पैसे की मात्रा बढ़ेगी। कपिल शर्मा जो है वो उसका तो मैंने बताया, सेम विद दिलजीत, सेम विद ऑल द फिल्म स्टार्स, यू नो, uh, that we connect with, and all the film stars that we see, they are full of self-worth. That's why they have fame, they have people being attracted to them, and they have money coming to them. Even जैसे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, रियाना या प्रियंका चोपड़ा, they just work on their own self-worth, on their own belief for that I deserve money, I deserve to be cherished, it's a blessing, and I deserve to have all the goodness in the world. I have I deserve all the goodness in the world. That's why I deserve money. So अब deservedness का जो belief system है खुद को लेकर, उसी से related है ना। Namita, you have to mute yourself, please. No, yeah, thank you. So none of these things is true. People who told you these things are innocent. आपको जिस जिस भी जने ने मनी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स डाली है कि मनी इज नॉट गुड, एंड मैं एक बार हिंदी में पढ़ी देती हूँ। शक्ति और धन गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। You know, as a kid, when we had even 10 rupees, we used to feel very rich. So it's not about the amount of money that makes you poor. It's the feeling you have in connection for money. How do you feel about money? अभी आपकी कोई भी स्थिति हो, but do you feel कि you are rich or you feel कि lack? आप lack में जी रहे हो, या आप unsatisfaction में जी रहे हो, या आप fulfillment and blessing में जी रहे हो? You know, are you feeling fulfilled in relationship with money, or you feeling lack of money? धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। So I will tell you, for when I got married, of course I had money, but for a time being of 1 year, 2 year, 3 year, I realized I don't have a good relationship with money. In terms की शादी से पहले तो my father was, providing for everything. But शादी होती है, of course I was getting some, the token amount जो घर खर्चा के नाम से मिलता है, वो मुझे पैसा मिल रहा था. But I felt very insecure for the money. And उस वक्त I started working on my, relationship with money. मैंने business भी शुरू किया. But then I worked on my relationship with money because I was complaining myself कि मेरे पास ये lack है, ये lack है, ये lack है. At my father's place I had this. So I really realized कि कुछ ना कुछ, इट्स नॉट कि मेरे ससुराल में प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, या आई रियलाइज मेरी रिलेशनशिप मनी के साथ, मेरी रिलेशनशिप और मनी की साथ रिलेशनशिप और बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो मैंने ये बुक उस वक्त पढ़ के अपनी रिलेशनशिप विद मनी, मेरी क्या फीलिंग है मनी को लेकर, उस पे काम किया।
लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो इसका अर्थ यही है दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएँ नहीं हैं। तो ये मेरे को लाइन स्टक हो गई और शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे को ऐसा पैसे के लिए गंदी फीलिंग कहाँ से आई? मेरे को तो नहीं लगता मैं गंदा फ़ील करती हूँ या मेरे पास अच्छी भावनाएँ नहीं है। तो मैंने इसको पकड़ लिया कि अगर मुझे कमी पर्याप्त पैसे नहीं लग रहे, तो कोई तो मेरी है ना नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होगा पैसे को लेकर जब भी मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि मैंने इस बुक को 100% लॉ माना, सच माना। तो मैंने इसको सच मान के आई स्टार्टेड द इंक्वायरी कि व्हाट इज़ इट? हाउ आई फील अबाउट मनी कि आई डोंट हैव मनी। तो देन आई फिगर इट आउट कि अ, पैसे के कारण पापा बोलते थे कि लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, फैमिलीज़ टूट जाती हैं, फैमिलीज़ में प्यार नहीं बना रहता। अगर आपके पास पैसा होता है तो लोग जलते हैं या आपसे सिर्फ़ दोस्ती, प्यार भी सिर्फ़ पैसे के लिए करता है। तो ये सब मैंने चीज़ें बचपन में सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली ग्रैब कर रखी थी और सुनी हुई थी। तो आई थिंक मेरे कहीं न कहीं वो ब्रेन में मेरे वो डर था, वो इनसिक्योरिटी थी। तो मैंने उसको कैच करके मैंने बस पकड़ा कि दिस इज़ नॉट ट्रू। I started saying this is not true. And then I started saying money is a blessing. I love money. I started affirming good things, good new beliefs about money. दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी ज़रूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब ये है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएँ अच्छी है। इस तरह आप एक ही पल में ये जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएँ क्या हैं। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। Even, for that matter, I feel कि my mama is a housewife and, my I'm coming from a very good family and फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है। बट एज़ किड्स मी, माय सिस्टर एंड ब्रदर वी लिव्ड अबंडेंस में हमेशा हम लोग बाहर पढ़े, हम लोग ने इतने खर्चे किए, मम्मी भी सारा पैसा हम तीनों बच्चों पे खर्च करती थी। बट शी ऑलवेज़ यूज्ड टू क्रिब अबाउट मनी एंड she didn't used to spend on herself, or she didn't used to, use money for her own self, or she had resistance in keeping servants and paying to servants and paying to, house help. So I realized that my mom doesn't have a good relationship with money. And because of her whatever belief system कि लोग चोरी कर लेंगे या पैसे को संभाल के रखना चाहिए एंड पैसा बहाना नहीं चाहिए एंड इवन बीइंग स्कैर्ड कि यार मैं पैसे बहा तो नहीं रही, मैं पैसे वेस्ट तो नहीं करती, ये बिलीफ सिस्टम से भी आप है ना इनसिक्योर और डर की तरफ जाते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द गुड फीलिंग कि आई अट्रैक्ट मनी, आई इन्वेस्ट मनी, आई यूज मनी वेरी कॉन्शियसली एंड एफर्टली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो आपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन-दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क ये ही है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं की बजाय अच्छी भावनाएँ ज़्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं की बजाय बुरी भावनाएँ ज़्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएँ अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण ये नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए हैं या गरीब में पले-बड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की होती है। अब नरेंद्र मोदी ले लो या बहुत जितने भी बड़े-बड़े मिलियनेयर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनने शून्य से ही शुरुआत की होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब घर वालों को ही है ना गरीब ज़रूरी नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए इसलिए गरीब में पले-बड़े, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की है। मतलब ज़रूरी नहीं है जो अभी अमीर है तो वो पहले गरीब नहीं रहा हो। तो इसका गरीबी होने से या पेरेंट्स के पास पैसे होने से आपके गरीबी होने का कोई लेना-देना नहीं है। ये सब भ्रम है आपका जो आप बिलीव में कर रहे हो कि मेरे पेरेंट्स पुअर थे इसलिए मैं पुअर हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, मैं काम नहीं करती इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये सब फ़ॉल्स बिलीफ सिस्टम है। जैसे ही आप प्यार को लव देना शुरू कर दोगे और ये बोलोगे कि आई डिजर्व मनी, मनी इज अ ब्लेसिंग, आई अट्रैक्ट मनी, मनी फ्लोज टू मी इजली एंड हैप्पीली, पीपल लव टू गिव मी मनी, मनी लाइक्स टू बी विद मी, वैसे ही आपके पास पैसा आने लग जाएगा।
पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती हैं, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती है। जैसे हमारे पास इससे खरीदने के पैसे नहीं हैं, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेमान करते हैं, अमीर बनने से इच्छा गलत है, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। अगर आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हो तो आपके पास वैल्यूज नहीं है। इफ यू आर वेरी रिच देन यू मे बी इनटू शो ऑफ एंड ऑल, एंड यू विल नॉट हैव एन हार्ट। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम बचपन में ये मैंने सुन सुन के कहते कि अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो घर टूट जाता है, एंड उस घर में शांति नहीं रहती, पैसे आने से घर में शांति नहीं रहती। ये मैंने एज अ किड बहुत सुना है कि पैसा आता ही प्रेम खत्म हो जाता है, सबके मन में लालच आ जाता है, सबके मन में तेरा मेरा आ जाता है, सो मनी इज नॉट गुड, मनी इज इवल। तो ये सब when you become conscious and you release it कि this is not true, then you actually be able to believe something else। जैसे मैंने फिर है ना उसके बाद मैंने है ना लिस्ट बनाई कि कौन कौन लोग इस दुनिया में अमीर हैं, and they are being so philanthropic, they are doing something for the society, and they have a very big heart। So when you start seeing those people who have leadership and who have money and who are very effective and who are making a difference in the society, then you will want to be rich। There is nothing being wrong with rich, and being greedy and mean and selfish has nothing to do with being rich। Money is a very different thing, greed is a very different thing, being mean and प्यार की कमी होना is a very different thing। ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। ये भी सच नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो ही पैसा मिलेगा। यू कैन डू व्हाट यू लव, यू कैन चेरिश व्हाट यू लव, यू कैन जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड अर्न मनी। स्पेशली अभी रिसेंट जनरेशन में देखा गया है कि लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, तो ट्रैवल ब्लॉगर्स बन के दे आर अर्निंग मनी। किसी को कुकिंग पसंद है, दे आर बिकमिंग कुक, they are writing cooking books, or they are running cooking channels, or they are teaching cooking, or they are cooking and shipping through वो किचन से खाना बना बना के, केक्स बना बना के। अभी तो लॉकडाउन में लोगों ने इतने जो बिजनेस शुरू हुए हैं, सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, लोगों ने मजे मजे में लॉकडाउन में शुरू कर दी क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, एंड वो मिलियनर बिलियनर बन गए। तो जरूरी नहीं है कि मेहनत से ही पैसा है, आप मजे मजे में भी पैसे कमा सकते हो। बचपन में आप अपने माता-पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। अब ये बोल रहा है जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना आपकी, वो आपके बिलीफ सिस्टम से आ रही है, आपकी नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हो। विसंगत ये है कि आपको ये सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ये भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं। भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें सिखाया जाता है कि आपको पैसे कमाने जरूरी है इस जीवन को जीने के लिए, और इसके लिए आप है ना जो भी काम करना पड़ेगा, मेहनत का काम करना पड़ेगा, जो वो काम भी करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ये काम तो जरूरी है, ये काम तो ड्यूटी, ये तो करना ही होता है। तो ये सब गलत धारणा है, इसका इसमें कोई सच नहीं है। और धन की इच्छा मतलब करना भी ग्रीड, एंड यू शुड नॉट रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग। ये एक बिलीफ सिस्टम से भी एक धारणा बन के एक ब्लॉकेज बन जाता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू लव मनी। जैसे मेरे को कैलकुलेट मनी से इतना इशू था, काउंटिंग से इतना इशू था कि मैंने मैथ्स मैथ्स के लिए मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स। एंड उसी तरह से नंबर्स के कारण आई यूज टू बी स्कैर्ड ऑफ मनी ऑल्सो, कि आई डोंट नो हाउ टू हैंडल मनी। तो मेरे पास जैसे आई एम अर्निंग अ लॉट, पर मेरे को ऐसा लगता था कि आई कैन नॉट इन्वेस्ट, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे स्टॉक्स नहीं आते, मुझे इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, मुझे शेयर बाजार नहीं आता, मुझे एसआईपी नहीं आता, मुझे बैंक जाना नहीं आता, मुझे बैंक में बैंक की फॉर्मेलिटीज करनी नहीं आती। ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ ढोंग है, ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है कि आपको नहीं आता। देयर इज नथिंग लाइक इट। इन लास्ट 1 ईयर मैंने सारे बिलीफ सिस्टम अपने तोड़े हैं, स्पेशली आफ्टर राहुल जैन। मैंने बैंक में जो 4 अकाउंटिंग सिस्टम किया है, अकाउंट्स में पूरा संभालने लग गई, बैंक स्टेटमेंट्स मुझे सब समझ में आते हैं, एंड नंबर्स इज समथिंग आई लव।
वो मैं उसको रिपीट कर करके आई हैव स्टार्टेड डूइंग यूनिट इकोनॉमिक्स आल्सो। यूनिट इकोनॉमिक्स होता है एक इकाई। तो यार यूनिट इकोनॉमिक्स करके तो मजा आ गया यार, मतलब इट्स सो फन। सो इट्स जस्ट द बिलीफ सिस्टम यू हैव। अगर आपको पता है आपके बिलीफ में ब्लॉकेजेस है, यू कैन जस्ट से यार ये बिलीफ का ब्लॉकेज एंड दिस इज नॉट ट्रू। खुद को उसी वक्त करेक्ट करो यार। आई लव यूनिट इकोनॉमिक्स, मुझे तो अकाउंट्स बहुत पसंद है, मुझे बैंक जाना बहुत पसंद है, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट साइंस भी मैं तो जल्दी से सीख जाऊंगी। मैंने खुद को शुरू में झूठ बोला क्योंकि मेरे लिए ये सच नहीं था, पर ये मेरा अब सच बन चुका है। आई कैन डू इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आई एम डूइंग बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग देन माई हस्बैंड। So it's just, you have to take a step and have a courage to break your belief system. शायद आपको ये भी बताया गया होगा होगा कि आजीविका आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। अब ये भी बोला जाता है कि ये काम नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे, पैसे तो इसी काम से आएंगे, आपकी हॉबी से नहीं आएंगे, आपके पैशन से नहीं आएंगे। तो ये सब भी झूठ है। आपको सिर्फ मजे करने हैं, मस्ती करनी है, मजाक करना है, और आपको जिस चीज से पैसे कमाने हैं आप उस चीज से पैसे कमा सकते हो। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा मेहनत करके, खुद को परेशान करके ही पैसे कमाओ। दैट्स नॉट ट्रू। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जैसे फॉर माई फादर यूज्ड टू टेल कि हमने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, हम ऐसे ऐसे जगह काम करते थे जहाँ पे फैन भी नहीं चलता था, पंखा भी नहीं चलता था, एक की स्पीड पे चलता था। वो सब उनके बिलीफ सिस्टम थे। उनको लगता था कि वैसे जीना, उस तरह की लाइफस्टाइल जी के ही पैसे कमा सकते हो, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप एसी में बैठ के आराम से, बाली में बैठ के, माउंटेन पे बैठ के, कहीं भी बैठ के मस्ती करके, बीच पे बैठ के भी काम कर सकते हो और आप खूब सारे पैसे कमा सकते हो। And that's true. Many people who are traveling and who are having fun are earning a lot of money, more money than people who are sitting on the desk at home and not feeling good. So जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वह इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं, इन बिलीफ सिस्टम को सीखने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। इसलिए राहुल जैन सिखा रहा है, जो बहुत करोड़ों में खेल रहा है, कि यू डोंट नीड टू गो टू ऑफिस, यू डोंट नीड टू बी स्टक इन 10 to 6, जस्ट गो आउट, मीट पीपल, डू व्हाट यू लव, एक्सप्लोर, learn new things, be in continuous growth and development, and you will still earn a lot of money. आपको जो पसंद है उसमें जाओ, जो आपकी इच्छा है उसमें जाओ और उसको बढ़ाओ, पैसा अपने आप आएगा। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। ये बोल रहा है कि धन से संबंधी जो नकारात्मक धारणाएं है, बिलीफ सिस्टम है, उसकी वजह से आकर्षण के नियम को आर्थिक स्थिति के, आपका जो अट्रैक्शन है टू मनी मैग्नेट, जो आप मनी की तरफ आपका मैग्नेटिज्म है, वो कम कर देता है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम टूवर्ड्स मनी। अब आप ये सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसे कम हैं, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं, और बुरी भावनाएं आप अनकॉन्शियसली बिलीफ सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम फर्स्ट। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। लाउ त्सू ने लिखा है ये। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या में अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह मैं पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं ये बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं ये जब बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ताकि धन ना सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपक चिपके रहे। तो मैंने भी है ना, पहले मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरे पास पैसा नहीं है, पहले मैंने मनी को अट्रैक्ट किया। फिर मेरा ये मनी हैंडलिंग के ऊपर भी बिलीव था कि आई कैन नॉट हैंडल मनी, आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स। मुझे मैं आई शेयर ना, तो मैंने इसके ऊपर भी काम किया कि मेरे को लगता था, मेरे को डर लगता था कि मैं पैसा वेस्ट ना कर दूं, पैसा वेस्ट ना कर दूं, पैसा वेस्ट ना कर दूं। पैसा टिकता नहीं है, पैसा संभालना नहीं आता। मैं
फिजूल खर्ची कर दूंगी, क्योंकि इतना बहुत बचपन में सुनते हैं कि तुम तो पैसा का फिजूल खर्ची करते हो, तुम लोग को तो पैसा संभालने नहीं आता, तुम्हें तो पैसे की वैल्यू नहीं है। ये इतना सुन लिया कि तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं, पैसे की वैल्यू नहीं, कि वो डर आ गया कि मुझे पैसे की वैल्यू नहीं, मुझे पैसा संभालना नहीं आता। तो फिर आई आई चोज टू not believe in that belief कि मेरे को पैसे की वैल्यू नहीं है। I created, I'm very good with money, I can handle money, I'm very very good at handling money, I know how to invest money, I love money, I can save money, money मेरे पास टिकता है, money मुझसे चिपकता है। That's the belief consciously I created। और उसके बाद मैंने अभी within 6 months मैंने 20 लाख रुपए करीब करीब इकट्ठे कर लिए। I think this is one of the biggest achievements I did, and this is through manifestation only। And ये book reading, chapter reading में मेरे को समझ में आ रहा है मैंने ये किया है, उससे पहले तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैंने ये कब कर लिया। So yeah, it's a big achievement। And within 6-7 months मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए। अगर ये बिलीव सिस्टम पे मैं अगर 2 साल पहले भी काम करती तो मैं और इकट्ठे कर लेती। नो रिग्रेट्स, पर ठीक है, जब जिसको जो विद्या मिलती है वो वाली बात है। So you have to check what belief systems are stopping you from having abundance of money, what belief system is stopping you from having कि money आपके पास टिके, आपके पास रहे, आपके पास इकट्ठा होए। आपको किस चीज का डर है, आपका क्या बिलीफ है कि मनी निकल तो नहीं जाएगा, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं पैसे इकट्ठे कर लूंगी तो मेरे काम नहीं आएगा, किसी और के काम आएगा। मेरा ये भी बहुत बड़ा डर था कि if I start collecting money and if I start saving money and if I start investing money, then someone else will use my money, I will not be able to use money। मम्मी बार बार बोलती थी कि मैंने इतने मेहनत से पैसे जमा किए एंड पापा ले गए एंड पापा ने जमीनों में डाल दिया, शेयर्स में डाल दिए, वो पैसा मेरे पास कभी रहा ही नहीं। तो आई नो दैट फिर वो कहीं ना कहीं डर मेरे अंदर आ गया कि यार इफ आई स्टार्ट सेविंग मनी एंड तो क्या पता मैं खर्च भी नहीं कर पाऊं और वो मनी मेरे पास भी नहीं रहे, कोई और ले जाए। तो ये बिलीफ सिस्टम था, ये डर था, उसके कारण आई वाज नॉट एबल टू इन्वेस्ट प्रॉपर्ली। तो मैंने इस बिलीफ को देखा कि ये तो सच नहीं है बिलीफ, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम मॉम एंड डैड। I don't know their situations, but I can choose my life differently, and I can choose how I want to be with my finance। So I created कि यार मैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगी, मैं तो बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करूंगी, मैं मनी सेव करूंगी और मैं उस मनी को फिर जमीनों में लगाऊंगी और मैं बहुत बड़ा लैंड बैंक इकट्ठा करूंगी, एंड देन लैंड बैंक से मैं बहुत सारे एसेट्स इकट्ठे करूंगी। तो that's how I am financially making my changing my belief system about money। मैं ये देख सकती थी कि अमीर लोग ना सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि उससे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वे उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट दे तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे, सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच गया। ये आकर्षण के नियम की वजह से होगा जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से ही चलती है। जब मैंने पढ़ा था मेरा दिमाग ऐसे शूट करके पागल हो गया था। आई वाज लाइक क्रेजी। ओ माय गॉड, व्हाट इज इट द बुक सेइंग? दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है। पहले तो इस चीज को आपको सच मानना पड़ेगा, इसमें बिलीव करना पड़ेगा, और आकर्षण के नियम के हिसाब से ही चलती है। जब मैंने इस बुक को सच मान लिया, 100% फेथ देके इसके हिसाब से अपने बिलीफ सिस्टम पे काम किया, मेरे प्रॉफिट्स डबल हो गए, मेरी सेविंग्स डबल हो गई, एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट सो सीमलेसली एंड माय मनी इज जस्ट मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग। ये सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों पर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हैं तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की।
उनके मन में ये शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसे चिपकाने या चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे, उससे कहीं ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम को इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रिलेट टू मनी। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है पैसे को लेकर, आप किस तरह से पैसे को देखते हो, वो बदलना चाहिए। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनकी सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक ही नहीं पाया। अब बीच में क्या हुआ था, मेरे को है ना, जब ये डर खा रहा था ना, इफ आई स्टार्ट अर्निंग मनी, माय मनी विल बी लॉस्ट एंड पीपल विल टेक, चोरी हो जाएगा, कोई ले जाएगा। एक एकदम एकदम से कहीं ना कहीं से फीलिंग आ गई। गेस व्हाट, उस ईयर एक्चुअली में मेरा है ना कोई एक मार्केटिंग एजेंसी आई और वो पैसे चोरी करके चले गया। और मैं बहुत ज्यादा उस वाइब्रेशन में मेंटेन रही फॉर अ ईयर एंड आई कुडंट प्रोग्रेस एंड ग्रो। सो इट्स सो ट्रू, वट एवर यू बिलीव एंड जिस भावना है, जिस वाइब्रेशन पे रहोगे मनी को लेकर। फीलिंग चार्ट याद है ना, फीलिंग चार्ट को देखते रहो। फीलिंग चार्ट, जिस भावनाओं को लेकर रहोगे मनी को देखकर, वो ही आप अट्रैक्ट करोगे। वो वाला तो फीलिंग चार्ट नहीं आ रहा फॉर सम रीजन, ये वाला देख लेते हैं। आप लोग ने वो कर रखा है क्या, सेव कर रखा है क्या अपने वॉलपेपर पे? यू मस्ट, फॉर बिकॉज यू आर रीडिंग दिस बुक एंड दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। शुरू में आपको ये चार्ट को याद करने के लिए ना, यू शुड रियली 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 कीप इट एज अ वॉलपेपर। इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा खोलती हूँ। पता नहीं यार, खुल ही नहीं रहा। सबसे नीचे फियर है। फिर फियर, डिस्पेयर, गिल्ट, एनवी, हेट, एंगर, क्रिटिसिज्म, वरी, डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन, बोर्डम, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव। यू हैव टू चेक, क्या आप किसी और के पैसे को देख के जेलसी में हो, या आप गिल्ट में हो, यार मैं तो पैसा खर्च कर देती हूँ, मैं तो पैसा टिकता ही नहीं है, मैं तो फिजूल खर्ची करती हूँ। या डिस्पेयर में कि यार पता नहीं, मेरे पास तो इनफ मनी नहीं है, I am not happy with my money situation. I have so much, or you have fear, how will I pay my loans? Or you are angry with someone for money. You take money, you don't earn money, you don't give me money. Or you criticize money, कि you made me cry for money or something like that. Or you worry, क्या मैं पैसे कैसे बचाऊं, या मेरी पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। सो आपको, यू हैव टू चेक, आर यू इन सेटिस्फैक्शन, होप, एक्साइटमेंट, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव, और किस फीलिंग में हो। वो फीलिंग एज इट इज वापस आती है, एंड दिस इज सो 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 ट्रू। मैं डर में घुस गई थी और मैंने बहुत लॉस झेला था उस वक्त। सो एंड मैं जितनी बार डर में जाती हूँ ना, मैं उसी वक्त चैंटिंग करने लग जाती हूँ, या अफर्मेशंस करने लग जाती हूँ मनी के लिए, या ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देती हूँ फॉर मनी, लाइक 10 ग्रेटिट्यूड, अभी तक मुझे कितना पैसा मिला उसके लिए धन्यवाद, अभी जो चीज, जितनी चीजें मैं भोग रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी मिलता रहेगा उसके लिए धन्यवाद। दैट्स हाउ आई पुल माई सेल्फ। 3 कीज अपन ने सीखी थी ना, the key of love, the key of gratitude, and key of play. And I start imagining myself having a lot of money. So that's how I maintain myself in good vibrations with money. And फिर मतलब मेरी भावनाएं चेंज हो जाती है, तो मनी फिर सही आता है, the flow is good then. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you.
Love is a sticking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about the money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances. And I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. Saying that I deserve money, I deserve money, I love money, money is yummy, money is good, money is a blessing, I am blessed. I am blessed. I deserve all money. I deserve to enjoy. I deserve to feel good. I deserve to have luxury. I enjoy luxury. I am grateful for the luxury. Thank you, thank you, thank you for serving me. Once you start doing that, money just flows. You have to work on your self-worth. Your self-worth is very much related to how much money you have. If you feel you don't deserve money, आपके पास ही क्यों होना चाहिए पैसा, इतने सारे लोग हैं, then money will not come to you. The force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it according to the law. This is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. You can see how the law of attraction works. Attraction working when people win the lottery. अपन ने पढ़ लिया. This happens because they use the law of attraction to win the lottery, but even when they received money they didn't change how they feel about money, so they lost it all. When you don't feel good about money, you repel it. आपको नारायण बनना पड़ेगा लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए. और नारायण कैसे बनता है? नारायण देखो कितना शांत. ही इज, जब सांप ऊपर से है तो भी ही इज lying down very calmly and peacefully. That's why money, Lakshmi comes to Narayan. You know, the Narayanji and Lakshmiji, what we do in Hinduism, it's all symbolic. It never sticks to you. Even when you get some extra money you hadn't figured out on receiving, in no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hand. ये जब होता है, जब आपको पैसे के लिए अच्छी फीलिंग नहीं आती, यू रिपेल इट, तो आपके खर्चों की लिस्ट बढ़ जाती है अपने आप ही, ऑटोमेटिक होता है, कुछ नहीं करना आपको. So what is it that makes money stick? Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever, because you are far more magnificent than you realize. You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you're repelling money. It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such thing as hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of attraction and love. This is true in even lockdown. There was कि यार depression आ रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. I know a lot of people who have become millionaires even, and they were earning a lot of money even in lockdown. So it has nothing to do with what's going in the environment. It's your love, it's your manifestation power, and it's your feeling and belief system that attracts money. They lived the law of by imagining and feeling everything they wanted, and they defied the circumstances that surrounded them. मतलब बोल रहे हैं उनने अपनी imagination से circumstances को पीछे छोड़ दिया. Circumstances could not contain them. Circumstances could not control their life situation. Let our lives be good and the times are good.
We make our times such as we are and such other times. So when I travel and I see a lot of people living in a very, very, very next level of abundance of money, that time I realized, yeah, they feel they deserve all the money, they feel they deserve all the good, they feel they have right to eat the freshest fruits of the world, they deserve all the best vegetables of the world, they deserve all the best experiences of the world, they deserve to travel the best places in the world. It's their belief about their own deserving. The force of love can break through every single obstacle or situation. World problems are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with the same power whether the times are up or down. How to change the way you feel about money? When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feel about money, the more money you magnetize to yourself. If you don't have much money, then receiving bills won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feelings, and most surely you will receive bigger bills. A lot of people love bargaining and complaining. Bargain अगर मस्ती से कर रहे हो तो अलग बात है, but if you are coming and bargaining from lack and you're bargaining from कि इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है, you will end up actually buying महंगा. But if you are grateful and you feel blessed, yeah, I'm getting such a big service, I'm so blessed, I'm getting so much in for small amount of money, then you will see you will start receiving free things, free complimentary services, and money will just flow to you. मैंने तो ये खुद ने इतना प्रैक्टिस करके एक्चुअली में फील किया, एंड आई फेल्ट, ओ माय गॉड, I am in abundant of money. Whatever you give, you receive back. The most important thing is that when you pay your bills, you find a way, any way to make yourself feel good. अब इसमें रोंडा ब्रायन बोलती है, आप किसी को जब पेमेंट कर रहे हो ना, तो बहुत शुक्रिया करके दो. ऐसे दो पैसा कि तेरा भला हो, इस पैसे से तेरी जिंदगी बन जाए, इतनी ब्लेसिंग्स दो उस मनी को, इतनी ब्लेसिंग्स दो, तो वो जब आपके पास घूम के आएगा ना, तो वो डबल ट्रिपल चौबल होके आएगा. ऑल्सो इसमें एक प्रैक्टिस है कि आप है ना ग्रेटिट्यूड करो. 3 नोट रखो अपने पास, रोज उनको ग्रेटिट्यूड करो, 10-10 के या 50-50 के, एंड फाइंड 3 नीडी पीपल, और उनको बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वो पैसा दो. तो आपकी लाइफ में पैसा आना डबल ट्रिपल हो जाएगा. तो व्हेन आई स्टार्टेड चेंजिंग माय बिलीफ सिस्टम एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय फीलिंग्स फॉर मनी, आई डिड दिस 3 नोट का थिंग. मैंने गड्डी बना के रखी थी. हर हर दिन मैं गाड़ी लेके जाती थी, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था मुझे ढूंढने में कि मैं किसको पैसे दूं, बिकॉज आई हैड टू फाइंड समवन नीडी ऑफ द मनी और समवन हु आई लाइक टू गिव मनी टू. तो मैंने फिर लोग ढूंढे, 3 जने, उनको बहुत ग्रेटिट्यूड करके पैसे दिया. मजा आ गया था यार, मतलब उससे पैसा तो इंक्रीज हुआ ही, पर वो जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो मी गिविंग मनी वाज द बिगेस्ट हैप्पी फीलिंग आई हैड इन द होल डे. मतलब इतना अबंडेंट फील होता है, इतना फुलफिलमेंट, इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है. व्हेन यू गिव मनी टू समवन, यू एक्चुअली फील हाउ रिच यू आर, you actually feel how blessed you are, you actually feel how deserving you are. So it really works very well in changing your belief system. Never pay your bills when you don't feel good, because you will just bring bigger bills to you. To change what you are feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you have decided to donate money to each company or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill by thinking about how you have benefited from their service, for electricity or for being able to live in a home. You can write across the front of the bill when you pay it, "Thank you, paid." If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, "Thank you for the money." The law of attraction doesn't question
whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give. Period. You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. जितना आप प्यार दोगे पैसे को, उतना पैसा आएगा. पैसे का आपके काम से और आपके टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. आई नो दिस इज वेरी डिसइंटीग्रेटिंग टू लिसन टू, बट दिस इज ट्रू. जब मैंने ये पढ़ा था मेरा दिमाग खराब हो गया था. I felt so stupid. You are rewarded not according to your work or your time, but according to the measure of your love. कर्म की दुनिया अलग है, भावनाओं की दुनिया अलग है. कर्म की दुनिया में जो आप करते हो उसका एक अलग तरह का रिवर्स एक्शन आता है, और भावनाओं की दुनिया में जो आप देते हो उसका अलग रिवर्स एक्शन आता है. अगर आप किसी को बहुत ज्यादा उसके लिए करे जा रहे हो, इवन इन रिलेशनशिप यू आर डूइंग सो मच फॉर योर हस्बैंड, यू जस्ट डूइंग एंड कुकिंग एंड गिविंग एंड कुकिंग एंड गिविंग, पर आप खाना बना के दे दिया और उसको 3 बातें भी सुना दी कि आई एम डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दैट फॉर यू, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, एंड यू आर नॉट ग्रेटफुल. तो आप एक्चुअली में खुद को जता रहे हो, खुद को ऊपर दिखा रहे हो. तो फीलिंग आप क्या दे रहे हो कि द अदर पर्सन डजंट लव यू, और द अदर पर्सन डजंट रिस्पेक्ट यू, और दैट यू आर ग्रेटर देन हिम. तो भावना में तो आपने वो दे दिया ना. इंस्टेड ऑफ गिविंग लव you are giving something else. You're giving food, of course you're doing a lot of work, but भावना में तो आपने नेगेटिविटी दे दी ना. तो वो जो आपके पास रिवर्स होके आएगा ना, जैसे पुराने जमाने की तो क्या बात करूं, इवन माय मॉम सेज कि आई डू सो मच फॉर यू, यू गाइज आर अनग्रेटफुल, यू गाइज आर अनग्रेटफुल. मन नहीं होता, ऐसा लगता है भाग जाए मम्मी के पास से, खाना भी नहीं खाना, खाना मत ही बनाओ. मतलब आई यू अंडरस्टैंडिंग मी? सो भावना और कर्म की दुनिया बहुत अलग है. सो इफ यू डूइंग समथिंग, डू इट विद लव, और डोंट डू इट एट ऑल. ये जब मुझे समझ में आया था तो मैंने बहुत से काम करने बंद कर दिए थे जो मैं कर रही थी पर नेगेटिव फीलिंग से कर रही थी. वो ही बहुत बड़ा काम था. टू जस्ट स्टॉप डूइंग थिंग्स यू डोंट लव, सच दैट यू स्टॉप गिविंग नेगेटिव फीलिंग. काम करना ही बंद कर दो. दुनिया नहीं रुकेगी, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा. जस्ट स्टॉप डूइंग थिंग्स यू डोंट लव एंड योर लाइफ विल चेंज, बिकॉज you will stop giving negative feedback. younger. मैंने नया लिया ये जीन्स, पापा ने दिलाया तुम्हारे, तुम्हारे पापा ने दिलाया. मैं सोफा देखने गई थी. Anshu, Oh can sorry, you mute yourself? Yeah, sorry. I'm really sorry, I'm really sorry. No issues. So when you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. आप समझ रहे हो, ये मतलब ये आपको बोल रहा है कि आप जो कर्मों की दुनिया में खुद को बोस्ट करते ना, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये मैं ये मैं आई गॉट वेरी क्लियर, एंड आई कॉन्शियसली मेक श्योर कि मैं अपने बिजनेस को और खुद की आइडेंटिटी को अलग अलग रखूं. I told myself, Richa, faith and patience is faith and patience. It has nothing to do with who you are. Even if you feel you're good for nothing, faith and patience has nothing to do with it. Faith and patience will still grow. And if even if you feel you're doing so much, you're doing so much, you're doing so much, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, your doing has nothing to do with faith and patience profit. Doing doesn't give you money. वरना हर जना जो मिस्त्री जो होते हैं, या ये जो वर्कर्स होती है, जो लेबर होती है, दे वर्क हार्डर देन अस, बट दे डोंट गेट मनी द वे वी हैव. सो अंडरस्टैंड लॉ ऑफ फीलिंग्स, law of attraction. When you receive your salary, be grateful for it so it multiplies. Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the great multiplier. Seize every opportunity to play. Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good about money. Feel love when you pay for anything.
Feel love when you hand over money. मतलब बहुत खुश हो यार पैसे देते समय, ऐसे फील करो, वाह मैं पैसे दे पा रहा हूँ, वाह मैं पैसे दे पा रही हूँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, लख लख शुक्र है, लख लख शुक्र है, तूने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं किसी को पैसे दे पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं कि मैं किसी को पैसे दे पा रहा हूँ, वाह, वाह, वाह मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं किसी को पैसे दे पा रही हूँ, वाह माय कंपनी इज सो capable of giving salaries, wow. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you are giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. Here is a game you can play so you can remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing the lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bill to the front इन फेसिंग यू, मतलब ऊपर के, आपने खुद ने गेम इन्वेंट कर लिया क्या, कि एक नोट है उसके पीछे वाला है ना नेगेटिव फीलिंग वाला है, पॉजिटिव फीलिंग वाला है, तो आप जब भी किसी को पैसे दोगे तो उसको फ्रंट साइड से दोगे और फील गुड करोगे, वो आपके लिए एक तरह से रिमाइंडर हो जाएगा कि वाओ आई एम पेइंग बिल्स. Imagine the back of the dollar bill as the negative side representing the lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bill so the front is facing you. Put the bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you're using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. अब ये बुक जो चैप्टर पढ़ा था ना, उसके बाद मैं गई, एक ड्रॉर में बहुत सारे पैसे ऐसे ही भरे रहते थे, उस दिन मैंने सारे पैसे को अरेंज कर दिया, एंड आई फेल्ट कि कितना सारा पैसा है, कितना अबंडेंस ऑफ मनी है, मेरा मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया उसके बाद से. So if you're using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of your card is telling you that there is abundance of money and it has your name on it. When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handing it to and mean it. Whatever you give out, you receive back. अभी सब पेटीएम हो गया, तो मैं अभी मैंने फीलिंग क्या करना शुरू कर दिया, यार मैं तो है ना बहुत सारे पैसे लेके घूमती हूँ हमेशा. I'm always with money. The money energy is surrounding me all the time. I'm always full of money. आई एम लिविंग विद अबंडेंस ऑफ मनी, और मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं होती, और मेरे पास खूब सारा पैसा है, मेरे फोन में पैसा ही पैसा है, मेरे पेटीएम और बैंक में पैसा ही पैसा है, एंड इट्स ऑलवेज विद मी बिकॉज द फोन इज ऑलवेज विद मी. Imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different because you would feel different. You would walk differently. You would talk differently. You would hold your body in a different way. You would move differently. You would react differently to everything. Your reactions to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in your life will be different because you would feel different. You would be relaxed. You would have peace of mind. You would feel happy. You would be easy going about everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money. And that feeling is magnetically sticky. That's the feeling you want to capture. That's the feeling of love for money. And that feeling is magnetically sticky. उस इमेजिनेशन से फीलिंग को कैच करके लाके खुद में रोक के रखना है. Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours were you already in possession of that thing you desire, and your wish will objectify itself. Capture, capture the feeling associated with your realized wish by assuming
the feeling that would be yours were you already in possession of the thing you desire, and your wish will objectify itself. ये बोल रहा है पहले तो इमेजिन करो आपको क्या चाहिए, और इमेजिन करो वो आपको मिल गया, फिर वो कैसी फीलिंग होगी वो उसको इमेजिन करो, फिर उस फीलिंग को कैप्चर करके अपना बना लो कि ऐसा सच हो गया। उस फीलिंग को मेंटेन रखोगे ना, तो जो चीज होनी होगी ना वो अपना आप हो जाएगी, जो आपको चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो फीलिंग को पकड़ के रखा। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर की अनुसार मिलता है। कितना फ्रीइंग है ना ये पढ़ के। You can't criticize yourself, you're not giving time, because it's not how much time or hard work you're doing, it's about how much love you are giving. अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को ये मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसे करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। ब्यूटिफुल। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को ये मानकर जकड़ ले जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसे करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। मेरे को तो लगता है ये लाइन इटसेल्फ अपन को 10-20 बार पढ़नी चाहिए, एक बार 2 बार 3 बार नहीं। मैं ये व्हाट्सएप में डाल देती हूँ। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को ये मानकर जकड़ ले जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को जकड़ना है कि वो चीज आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो इच्छा एक्चुअली में हो जाएगी। क्रेजी ब्यूटिफुल। Okay, so today we will end the book reading here only. Any questions? Okay, we can end the book reading for today. मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है book reading में. I'm learning so much. I'm learning to be in imagination and maintain my frequency by imagining what I want as if it's already there. So I have to maintain my aura. I have to maintain my well-being. I have to maintain how I act, how I walk, how I talk, because I already have what I want. So feeling very powerful. Any sharing or any questions before we end for today? Okay, see you tomorrow. I will upload today's and yesterday's recording soon.